Today we are learning about the earth, myth, and reality. If you like this video, please like, share, and subscribe. So, an ancient town in the 2nd century BC, the people are celebrating the day of marriage by possession of their prince who got married to a beautiful princess of neighboring country. People crowded on the other side of the royal path to welcome the prince. The 2nd century BC में एक marriage हो रही थी. Marriage हो रही थी. Rather than seeing the princess, all of them were curiously viewing the princess' wedding gift, a huge golden statue with a human head on horse body. तो शादी में सब लोग दूल्हा और दुल्हन को देखने के बजाय दूल्हे के हाथ में एक गिफ्ट था. उस गिफ्ट में मनुष्य के बॉडी में एक हॉर्स का हेड था. But the joyful days didn't last long. The town was struck by a severe drought. To know the reason for the drought and to prescribe the remedy, the king assembled all the great astrologers of the land. The finding was that the drought was brought about the prince's wedding gift, the golden statue. To remember the situation, they recommended the golden statue to be thrown from the edge of the earth. तो क्या एक सीरियस ड्रॉट आ गया था, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया था और पूछा गया था कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस गोल्डन स्टैचू की जो है गोल्डन स्टैचू थी उसे धरती के एज से थ्रो किया जाए ताकि वो अर्थ से चला जाए. तो ये अभी तक हमने ये स्टोरी पढ़ी थी. डू यू थिंक दे कुड हैव थ्रोन द स्टैचू फ्रॉम द एज ऑफ द अर्थ? फॉर अ लॉन्ग टाइम द अर्थ वॉज बिलीव टू बी फ्लैट. तो उस टाइम में ये सोचा करते थे अर्थ फ्लैट थी, तो कि इसी तरह से हम थ्रो किया होगा करके पूछ रहे हैं. The concept related to the shape of the earth were confusing right from the ancient times. Yes, the concept of spherical earth was forwarded by Greek philosopher Thales in 7th century BC. He believed that the sphere floated on water. तो ग्रीक फिलोसोफर थेल्स 7th सेंचुरी में ये सोचते थे अर्थ एक वाटर बॉल की तरह था और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता था. ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस और अरिस्टोटल अर्थ को स्पेरिकल शेप में कहते थे और वो अलग तरीके पोजीशन में घूमती थी. उसके बाद आर्यभट्टा जो थे एस्ट्रोनॉमर थे, वो अर्थ एक स्पेरिकल है और अपने आप एक इमेजिनरी एक्सिस पे घूमता है. उसके बाद मालेगन वॉयज वर्ल्ड प्रूव दैट अर्थ इज स्पेरिकल. तो ये भी अर्थ को स्पेरिकल करते थे. और सर आइजैक न्यूटन अर्थ इज नॉट ट्रूली स्पेरिकल इन शेप बट स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल. तो फुल्ली स्पेरिकल नहीं है बट पोल्स के यहाँ flattened था. The spherical shape of the earth which is lightly flattened to the poles and bulged at equator is known as geoid. तो जो स्पेरिकल पोल्स के यहाँ फ्लैटन है और इक्वेटर के यहाँ बल्ज है, तो इसे जियोइड कहते हैं. जियोइड का मतलब होता है अर्थ शेप. नाउ डेज द शेप ऑफ द अर्थ इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द सैटेलाइट इमेजेस. हाउ बिग अर्थ इज, तो कितना बड़ा है अर्थ. अबाउट हाउ फार इज फ्रॉम आवर स्कूल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑन द फुट. डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक जीन बिलीविया द कैनेडियन एक्सप्लोरर टू ट्रैक एंड सेल अराउंड द वर्ल्ड? अबाउट 11 years पड़ गए जीन बिलीवर को all over the world घूम के देखने के लिए. Where on earth am I? Have you ever thought you have been in the position of you answer maybe in Asia, in India, in Kerala and so on? There are exactly location for each and every feature or a place on the earth. It's determined on the basis of certain measurement. Let's see how the location of the feature or a place is determined. Do you know how is the first attempt to find the size of the earth? सबसे पहले किसने अर्थ की साइज कितनी होगी किसने अटेंड की थी? वो थे Eratosthenes. Eratosthenes, the Greek philosopher, calculated circumference of the earth to be 2,50,000 stadia, the commonly used unit of distance in the Greece. तो इन्होंने सबसे पहले अर्थ का सर्कमफ्रेंस बताया था. ये ग्रीक फिलोसोफर थे. उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का lines on the location of any region on the earth can be determined based on such. Let's know the lines are drawn at exact angular measurements on the spherical surface. एक surface पे उसके ऊपर angular lines डाले जाते हैं, imaginary lines डालते हैं और sphericals. What is angular measurement of a circle? Can you see the vertical and horizontal marked on the globe? Yes, we see that this is latitude. So latitude में as डिवाइड किया हुआ है फिगर 5.5 एंड लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे काटा गया है. ये इक्वल बॉल्स की तरह काटा गया है, इसे लैटिट्यूड कहते हैं. Such lines are shown on globe as imaginary line. Latitude is angular distance to a point on the surface of the earth from center. By joining the same angular distance we get the lines of latitudes. Latitude में हर एक जो भी एक सरफेस काटा गया है वो हर एक
इक्वल में रहता है एक्सिस। इंसर्ट ए स्ट्रेट पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल ऑफ एंड लेट इट स्पिन। तो एक बॉल में हम एक क्या बोलते हैं, एक पोल को लगा रहे हैं, तो वो बीच से जाता है और उसको स्पिन कर रहे हैं। इमेजिन देयर इज अ स्ट्रेट पोल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द, तो एक स्ट्रेट पोल की तरफ जा रहा है अर्थ के बीच में से। दिस इमेजिनरी लाइन इज एक्सिस ऑफ द अर्थ। इसे कह रहे हैं इमेजिन लाइन एक्सिस ऑफ द अर्थ रोटेट्स ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, तो टिल्टेड एक्सिस में घूमता है। लेट्स ड्रॉ द लैटिट्यूड। टेक ए बॉल विच इज नॉट हॉलो, तो एक बॉल को ले रहे हैं, वो हॉलो है, कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो दो हाफ्स में काट रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर कैन यू लेबल द एंगुलर डिस्टेंस एज शोन इन द पिक्चर। तो आफ्टर मार्किंग द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जीरो से लेकर हम 90 डिग्री तक जब हम उसमें मार्किंग्स करते हैं, तो नाउ लाइंस कैन बी ड्रॉन इंस्टेड ऑफ डॉट्स टू जॉइन द सेम एंगुलर डिस्टेंसेस। तो उस एंगुलर डिस्टेंस से इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। बाय जॉइनिंग द टू हाफ्स ऑफ द बॉल यू विल गेट द स्पीयर विद अ सर्कल मार्क्ड ऑन देम। इट्स बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल में बेस किया हुआ है। Observe the globe. You can see that the size of the circle decrease with the position away from the center. Haven't you noticed the number of the dots along the latitude at the same angular distance decrease gradually? तो जिस तरह से latitude में जो है उसका जो angular distance है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। The latitude line along the middle of the globe is longest one. तो latitude का जो middle of the line है वो globe पे वो सबसे बड़ा वाला है। This line latitude is called equator. तो equator जो होता है सबसे बड़ा होता है, और ये जो लाइन ऑफ द लैटिट्यूड है सबसे बड़ा होता है और लॉन्गेस्ट वन है। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ इक्वेटर इज 0 डिग्री। तो इक्वेटर पे जो मेजरमेंट है वो 0 डिग्री। चेक वेदर द लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर सर्कल्स। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में इक्वेटर में हमें सर्कल्स दिखता है। दीज पॉइंट्स आर नोन एज नॉर्थ एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली। ऑल द अदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देख रहे हैं, नॉर्थ पोल नॉर्थ आर्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर 23.5 साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 to साउथ ऑफ ट्रॉपिकॉर्न। एंड फाइंडिंग आउट लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइडिंग द अर्थ इन टू हेमिस्फीयर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक लाइन डिवाइड कर रहा है टू हेमिस्फीयर की तरह, हेमिस्फीयर टू नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, एक नॉर्थ की तरह एक साउथ की तरह, बिगेस्ट सर्कल ऑफ लैटिट्यूड। Latitude is the northern hemisphere are called north latitude and those in the southern hemisphere is called south latitude. जिसमें जिसमें लैटिट्यूड जिसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसे नॉर्थ लैटिट्यूड कह रहे हैं, जिसे सदर्न हेमिस्फीयर से साउथ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह। ड्रॉ ए लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन द सेम बॉल ऑन विच द लाइन लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन। तो लैटिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे की तरह डिवाइड करते हुए उसे कहता जा रहा है द परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। इक्वेटर को परपेंडिकुलर मतलब ऊपर से परपेंडिकुलर की तरह कट कर रहे हैं हम लोग। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम 0 डिग्री, 0 डिग्री से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद मार्किंग एंगुलर डिस्टिंग बिटवीन द प्रोटेक्टेड जॉइंट ईचिंग द स्टिकिंग ऑन द बॉल, न्यू लाइन्स कैन बी ड्रॉन आफ्टर रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर ओवर अ हाफ ऑफ rejoin to half, you will get a sphere with a curved lines connecting both the poles. These lines are called longitude. 0 degree longitude is known as standard meridian. तो जब हम 0 डिग्री लेके हम बाकी को क्या डिग्रीज में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड प्रोट्रैक्टर से लेके डिवाइड करने के बाद उसे ज्वाइन करके हाफ की तरह लेंगे, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस of standard meridian. Lines of longitudes are imaginary lines connecting the same angular distance with reference to standard of meridian. तो all the lines of the longitude converge at both the poles. तो सब एक जो longitude जो converge कर रहा है पोल की तरह, there are 180 degree of longitudes on either standard of meridian. Identifying the standard of meridian. स्टैंड ऑफ मेडिरियन को देख रहे हैं हम लोग, तो वो एक बीच का लाइन होता है, वो डिवाइड कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर को और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड ईस्टिट्यूड। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ है इसी ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ उसे वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। The exact location of the place on the earth is determined based on the latitude and longitude. Identifying the location, तो लोकेशन में हम देख रहे हैं नॉर्थ और यहाँ ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट को देख रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ ग्लोब एंड द वर्ल्ड मैप। इंडिया बिटवीन 88 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। लॉन्गिट्यूड बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट एंड बिटवीन 98 डिग्री वेस्ट।
So Alina and Amma, two chill living at places located on almost opposite faces of the earth. Alina lives in California in USA and Amu lives in Kerala. तो Alina जो है कैलिफोर्निया में रहती है और अमू रहती है केरला में. As a globe, you can understand that these places are located on the opposite faces of the earth. Yes. तो एक दूसरे को देखा तो ये दोनों opposite faces का मतलब एक के पीछे मतलब ऑपोजिट कर रहे हैं एक दूसरे को. While Ammu goes to school in the morning, Alina is sleeping at night. While Alina goes to school in the morning, well it will be Ammu. So जिस टाइम पे अम्मू स्कूल जाती है उस टाइम अलीना सोते रहती है, जिस टाइम अलीना स्कूल जाती है उस टाइम अम्मू सोती रहती है. When it is day, one's face of the opposite face experiences night. तो एक जिस टाइम ये सन को फेस करता रहता है अर्थ, दूसरी तरफ जो होता है अर्थ का पार्ट उस टाइम उसको नाइट होता है और जो सन को फेस करता है उसे डे होता है. तो इसी तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हम इक्वेटर में देख रहे हैं कि अर्थ घूमता जा रहा है. जिस तरफ पे सनलाइट आ रही है उस तरफ में डे हो रहा है और जिस तरफ में सनलाइट नहीं आ रहा है वो नाइट हो रहा है. तो इस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से घूमते हुए अर्थ घूमते हुए हमें डे एंड नाइट इसी से हो रहा है हम लोग. It's not the same manner that day and night occurs on the earth. Don't you know that the source of the light for the earth is sun? जिस तरह से अर्थ को लाइट मिल रहा है वो सन से मिल रहा है. You have already learned that the shape of the earth is spherical and it's spin on its own axis. अर्थ का जो शेप है वो spherical है, वो अपने एक्सिस में घूमता है. The part of the earth facing the sun due to rotation gets illuminated and experiences day. As the opposite phase does not get sunlight, night is experienced there. Day and night is experienced one after the other due to rotation of earth. Day and night जो है वो किस तरह से हमें पता चल रहा है rotation of earth से. Earth takes 24 hours to complete one rotation. एक earth को 24 घंटे मतलब एक दिन होने के लिए 24 आवर्स होने से एक रोटेशन हो जाता है, वो मतलब एक दिन को काउंट होता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मून को, अर्थ को, सनलाइट को. रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो अर्थ का रोटेशन है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट होता है इसका. तो इस फिगर में देख रहे हैं इन द अबव पिक्चर कलर द फेस ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस अ डे विथ येलो क्रेयॉन एंड द फेस ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस नाइट विथ ब्लैक क्रेयॉन. जब सनलाइट गिरता है तो उस तरफ डे होता है और जिस तरफ पे सनलाइट नहीं गिरता है उस तरफ पे मूनलाइट आता है, उस तरफ पे हमें नाइट होता है. So sunrise and sunset. The change in the position of the sun is experienced due to rotation of earth. So sun हमें सनलाइट किस तरह से हमें मिल रहा है क्योंकि अर्थ के रोटेशन होने के कारण हमें सनलाइट मिल रहा है. यू माइट हैव नोटिस दैट द ट्रीज एंड बिल्डिंग्स सीम टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाइल वी ट्रैवल इन व्हीकल्स. हाँ, जब हम व्हीकल पे ट्रैवल करते रहते हैं तो अर्थ ट्रीज और बिल्डिंग्स जो हमें दिखाई देते हैं रोड के उस पार वो हमें कैसे दिखते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं जैसे दिखते हैं. डू दे रियली मूव, क्या वो मूव होते हैं. सिमिलरली द सन विच इज फार फ्रॉम द अर्थ सीम्स टू राइज इन ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. इसी तरह जैसे हम एक ट्रैवलिंग करते समय हमें किस तरह लगता है कि जैसे पेड़ पौधे अपने आप ट्रैवल होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस तरह हमें लगता है, उसी तरह ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह हमें भी क्या लगता है कि सन भी हमें ईस्ट टू वेस्ट दिख रहा है लेकिन एक्चुअली वो नहीं है. तो सन एक्चुअली वो नहीं है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता है. तो द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ अपने आप में घूमता रहता है उसे हम रोटेशन करते हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग ड्यू टू रोटेशन एंड गेट्स इल्यूमिनेटेड एक्सपीरियंसेस डे. तो सनलाइट आने के कारण जो जिस तरह डे बन रहा है उसे डे कह रहे हैं, लाइट बनने नाइट बनने पे, मूनलाइट गिरने पर उसे नाइट कह रहे हैं हम लोग. उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि सन विच इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ सीम्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट. इसी तरह जो सन हमसे बहुत दूर है वो हमें ऐसे दिखता है कि ईस्ट में राइज हो रहा है, वेस्ट में सेट हो रहा है. टर्न ए ग्लोब अराउंड द टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड शो इन द पिक्चर. इमेजिन दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द west of the right side is east and it because of the rotation of the earth from the west to east the sun seems to rise in the east and set in the west. हाँ, तो इसी तरह ड्रॉ द सन एट द प्रॉपर पोजीशन विथ रेफरेंस. तो पोजीशन ड्रॉ, जब सन इस तरफ में रहता है तो हमें इस तरफ छाया आता है, जब बीच में रहता है तो बीच की टहनी पे, और धीरे धीरे सनसेट होता है मतलब वेस्ट से ईस्ट आ रहा है. तो इसी का डायग्राम है. अलॉन्ग विथ रोटेशन ऑन एक्सिस अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. तो अपने आप घूमते हुए फिर सन की ओर भी घूमता है, उसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन. What all the changes occur in our surroundings in a single year. सिंगल ईयर में हमें क्या आता है, बसंत ऋतु आती है, समर सीजन आता है, उसके बाद रेनी सीजन आता है, उसके बाद रेनी सीजन आता है, उसके बाद
तो ये सब सीजन्स, रेनी, बरसात, सब what changes occur. Rainy season begins with reopening of schools. This gradually grows into cold. After that becomes hot. Some trees shed their leaves and bear. तो इसी टाइम में थोड़े पेड़ अपने लीफ को पूरा शेड कर देते हैं और फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं. हाउ डू यू नो व्हाई दी सीजनल चेंजेस आकर? क्यों सीजनल चेंजेस होते हैं? इट इज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ दैट वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन. अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण हमें बहुत सारे सीजन दिखाई देते हैं. Do you know how long it takes for the Earth to complete one revolution around the sun? कितना टाइम लगता है? 365 डेज लगता है अर्थ को घूमने के लिए सन के अराउंड. उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. वाओ. व्हाट इज स्पीड? डू यू नो द एवरेज स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज अबाउट 560 किलोमीटर. एक घंटे में 560 किलोमीटर ट्रैवल करती है एक एरोप्लेन. बट द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन मतलब सन की तरफ घूमने का जो रेवोल्यूशन है वो है 9, वो है अर्थ का जो है 9 lakhs 96,000 किलोमीटर पर आवर, 96,000 किलोमीटर पर आवर घूमती है वो सन की तरफ. लीप ईयर. टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन द अर्थ टेक्स, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के अर्थ को 365 डेज होता है. वो नॉर्मली एक डे. लेकिन जब एक दिन ज़्यादा लग जाता है एक ईयर में, उसे हम लीप ईयर कहते हैं. तो एक लाइट ईयर बढ़ जाता है. थिंक व्हाट माइट हैपन इफ आई स्टॉप रिवॉल्व अराउंड द सन. तो अर्थ जब सन की ओर घूमना बंद हो जाएगा तो हमें क्या बोलते हैं, खड़ा आई मीन हमें सीजन्स नहीं होंगे, हमें डे एंड नाइट नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. ओ दैट्स व्हाई आई हैव बर्थडे ओनली वंस इन एवरी 4 years, सो आई वाज born in 29 February. द यूनिक शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोइड. जो अर्थ का शेप है उसे हम यूनिक कहते हैं और वो उसे जियोइड कहते हैं. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अर्थ के ऊपर. द लोकेशन ऑन द अर्थ आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. जो अर्थ के ऊपर हम लोग एक डिटरमाइन कर लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं उसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय रोटेशन एंड सीजन्स आर कॉज्ड बाय रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. डे एंड नाइट हमें किस तरह से, रोटेशन और सीजन किस तरह बन रहे, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का शेप साइज मूवमेंट देखते हैं. शेप का हो गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. दो फिर उसके बाद हम मूवमेंट देख रहे हैं रोटेशन रेवोल्यूशन. तो रोटेशन